صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری محمد اکرام راجپوت کی سربراہی میں وفد کی کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو سے کراچی پولیس آفس میں ملاقات کے موقع پر خالد تواب، حنیف گوہر، شیخ عمر ریحان، مظہر ناصر سمیت اہم صنعتکار شریک تھے۔ بات کر لیں گے مبشر حسین سے۔ مبشر، اس ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جیسے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو سے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت سربراہی میں وفد نے کراچی پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران تمام اراکین موجود تھے، جن میں خالد تواب، حنیف گوہر، شیخ عمر ریحان، مظہر ناصر سمیت اہم صنعتکار شریک تھے۔ ایڈیشنل آئی جی نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہر میں امن و امان، صنعتی زونز کی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پولیس چیف نے کہا کہ کراچی میں نیشنل گیمز، ایکسپو، نمائش، کلچرل فیسٹیول اور دیگر بڑے ایونٹس کا انعقاد شہر کے امن، کاروباری سرگرمیوں اور ملکی معیشت کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ ساتھ ہی ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے مزید اسی اجلاس میں کہا کہ صنعتی علاقوں کی سیکیورٹی پولیس کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سرویلنس اور مربوط حکمت عملی کے تحت جرائم کے جو خاتمے کے لیے مختلف اقدامات پولیس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کاٹی کے جو صدر ہیں، انہوں نے اس اجلاس کے دوران کہا کہ بڑے معاشی مرکز کے سیف سٹی پروجیکٹ کی فوری تکمیل ضروری ہے اور کیمروں کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ پولیس کا مؤثر اقدام ہے۔ اس پر انہوں نے نیبر ہیڈنگ کیریئر سیکیورٹی پروجیکٹ کی بھی کامیابی کا ذکر کیا۔ اس دوران کورنگی کے کئی سیکٹرز میں کرائم ریٹ 0 ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی جو کاٹی کے ممبران تھے، صدر سمیت، انہوں نے پولیس کے انیشیٹو کو سراہا۔ ساتھ ہی جو درخواست پولیس کا کہنا تھا کہ غریب موٹر سائیکلوں پر ملازم پیش آور ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف بھی دیا جائے، یہ ایک اچھا اقدام تھا کورنگی ایسوسی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی جانب سے کہ عام جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو پولیس کی جانب سے ریلیف بھی دیا جائے۔ اس ملاقات کے آخر میں خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ ساتھ ہی مزید جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے اقدام کو سندھ پولیس کے سراہا اور ساتھ ہی ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ آنے والے جو روز میں مزید جو صنعتکاری طبقہ ہے اس پولیسنگ کے ذریعے جو ہے وہ مزید بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی گڈز ٹرانسپورٹ الائنس اور کراچی گڈز ٹرانسپورٹ کریئر ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا معاملہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 2 روز سے جاری پرامن احتجاج کے بعد ٹرانسپورٹرز عہدیداران احتجاجی پنڈال سے روانہ ہو گئے ہیں، تاہم اعلان یہ کیا گیا ہے کہ آج دوبارہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مبشر حسین سے تفصیلات دے لیتے ہیں، بتائیے گا۔ جیسا کہ کراچی ضلع کی ماری میں جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے، ان کی مختلف جو یونینز ہیں، ان کا جو ہڑتال کا گزشتہ روز جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد کئی گھنٹوں سے اسی مقام پر جو ہے وہ احتجاج جاری تھا۔ پرامن ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی گئی ہے، جہاں ایک جانب قیاس آرائیاں تھی کہ پنجاب کے چند ٹرانسپورٹر کی جانب سے ہڑتال کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ جو ہے وہ خبریں زیر گردش تھے، جس پر جو پاکستان گڈز ایسوسی ایشن الائنس کے جو صدر ہیں شہزاد اوان، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بے بنیاد جو ہے وہ من گھڑت ایک افواہ پھیلی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ہڑتال ختم کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی بات کی جائے جو حکومتی نمائندے ہیں وفاقی اور صوبائی، ان سے مشاورت جاری ہے اور کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، کوئی حتمی طور پر فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اس وقت جو پنڈال تھا اس کو مکمل طور پر جو عہدیداران تھے مختلف ٹرانسپورٹرز کے، وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو شمیانہ ہے اس کو بھی اس وقت کلوز کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل جو ہے وہ مزید مشاورت ہوگی اور اس کے بعد آنے والا جو لائحہ عمل ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ سمیت دیگر یونینز کے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حکومت کی جانب سے مطالبات مانے جائیں، اگر نہیں مانے جاتے تو اپنا حق جو ہے وہ حق دہی ریکارڈ کروائیں گے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے وہ ہر مراحل میں داخل ہوں گے۔ اگر حکومت کی مبینہ اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو اس سے بھی گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت چھوٹی بڑی تمام جو ٹرانسپورٹر تنظیمیں ایک پیج پر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چند گھنٹے بعد یعنی کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اگلا لائحہ عمل ہوگا، اس کے بعد ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ جی تو ادھر گیس کمپنی شہریوں کو گیس فراہمی میں ناکام ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس مینجمنٹ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔
फेडरल बे एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत शहर के दीगर इलाकों में गैस की फराहमी शाम 6 बजे से बंद है। मजीद जान लेंगे शायान अली से। जी बिल्कुल, सुई सदरन गैस जो है वो एक बार फिर शहर कायद को गैस देने में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। और शहर के मुतादिद इलाके, जिसमें अगर मैं बात करूँ FB एरिया, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर गैस जो है वक्त से पहले जो है वो फराहम करना जो है बंद कर दिया गया है सुई सदरन गैस की जानिब से। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो एक मुकर्ररा वक्त दिया गया था लोड शेडिंग का, जिस पर जो है बताया गया था कि शाम तकरीबन रात 10 बजे के बाद जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी, जो कि सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि शाम के औकात में भी जो है अब लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है और वक्त से पहले जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी तहत जो है शहरियों की जानिब से जो हेल्पिंग नंबर है, जो मदद के तौर पे जो वो नंबर दिया गया था कि इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस कंप्लेन नंबर पर जो है बार बार कॉल करने के बावजूद भी जो है हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि नंबर तो दे दिया गया लेकिन कोई वहाँ पर जो वो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अगर बताता चलूँ कि अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि सर्दी में इजाफा हो रहा है, शहर कायद में मौसम ठंडा हो रहा है, वैसे वैसे जो है लोड शेडिंग के जो कि गैस की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिस पर शहरियों की जानिब से काफ़ी शिकायत का जो किया जा रहा है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो करीब से दिखा दे कि हम देख रहे हैं कि हम शहरी जो है बड़ी तादाद में इन होटलों का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर जो है लकड़ी से और जो सिलेंडर से जो है गैस भरकर यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। तो वहाँ पर शहरी आ रहे हैं और शहरियों की जानिब से जो है यही कहा जा रहा था कि मजबूरन वो जो है घर से बाहर खाना खाने पर मजबूर है और महंगा खाना ख़रीदने पर जो है मजबूर है, क्योंकि घरों पर गैस नहीं आ रही, जिसके तहत जो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सुई सदरन गैस ने जो है अभी हल्की सी क्या ठंड पड़ी है कि लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है और वक्त से पहले लोड शेडिंग जो कि मुकर्ररा वक्त था उसके बावजूद भी जो है अब देख रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 बजे के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग शुरू कर दी, जिसके तहत जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की लाइनों की लीकेज की मरम्मत का आगाज़ कर दिया, जिससे गुलिस्तान जौहर के बेशतर ब्लॉक्स को भी पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन इरफानुल्लाह खान कहते हैं कि हंगामी बुनियादों पर लीकेजेस की मरम्मत का काम किया जा रहा है। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। साहब और CWO साहब की हिदायत पे ब्लॉक 14 में पोस्ट ऑफिस वाली गली और 3-4 गलियां से मुतासिर थी। 7 से 8 साल तक पानी नहीं मिल रहा था। इनका 24 से चेंज का कनेक्शन लगा था, मगर लाइन का जो थोड़ा से मसले मसाइल थे उसकी वजह से हमने इनको अभी फ़िलहाल डेमो के तौर पे इनको पंप लगा के पानी पहुंचाया है और 3-4 गली में पहुँच गया है। बाकी ये गली वाले अभी खुद जाके CO साहब से एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखें जो सोचते हैं। बाद आवाम मुतमईन हो गए, उनका 7 से 8 साल के बाद पानी पहुँच गया खुद को। 18 की लीकेज थी COO साहब असद साहब की हिदायत पे हमने 18 की जो 6-7 लीकेज थी वो तो रिपेयर कर दी हैं। अभी मुतअद्दिद लीकेज बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदादी तजावुज़ात डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अमले ने ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रोड पर कार्रवाई करते हुए 4K पावर हाउस चुरंगी, फुटपाथ और सर्विस रोड पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। डायरेक्टर गुलफराज हुसैन बोले, ठेले, पथारों और रेती बजरी के कारोबार से मुंसलिक अफराद समेत बिल्डर्स ने भी सर्विस रोड पर कब्जा कर रखा था। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ट्रैफिक रवानी बहाल रखने के लिए तजाविजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ, रोड साइड पर कायम गैर कानूनी तामीरात और तजाविजात मिसमार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजाविजात के जिला गरबी के डायरेक्टर गुलफराज हुसैन की जेर निगरानी सरजानी टाउन 4K चौरंगी ता पावर हाउस चौरंगी इंसदाद तजाविजात मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान सर्विस रोड और फुटपाथ पर मौजूद ठेले पथारे हटाकर जब्त कर लिए गए, जबकि रेती बजरी के थल्लों और बिल्डर्स की जानिब से सर्विस रोड पर कायम तजाविजात मिसमार कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, MC अफजाल जैदी साहब और सीनियर डायरेक्टर अमार खान जो एंटी इंक्रोचमेंट के हमारे डायरेक्टर हैं KMC के, उनकी और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार मेमन साहब की हदायत के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ पर जब आया मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत सॉफ्ट एंड हार्ड एनक्रोचेस बहुत थी, जो कि हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़त्म करवा दी। जो यहाँ पर पोल्स और बोर्ड्स यहाँ पर बना रखे हैं वो सब हमने यहाँ पर गिरा दिए गए हैं और सॉफ्ट एंड हार्ड इंक्रोचमेंट्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इंसदाद तजाविजात के अमले का कहना था कि जब्त शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल करके किसी सूरत वापस नहीं किया जाएगा। 4K चौरंगी से लेके अभी हम ग्रीन लाइन तक पहुँचे, तो ग्रीन लाइन तक पहुँचे यहाँ पे हमने जितने छपरे लगे हुए थे वो तोड़े और जो सामान ठेले थे, काउंटर से दीगर अशिया थी वो सब चीज़ें उठा के जब्त की गई, ट्रकों में भर के स्टोर पहुँचाया गया।
ठीक है, थैंक यू। कई घंटों पर मुहित इंसदाद तजाविजात ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इलाका पुलिस भी भारी तादाद में मौजूद रही। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 13वीं बाराकूडा मशकों का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की जानिब से इफ्तिताह किया गया। 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी मशकों के दौरान समुद्री आलूदगी पर काबू पाने और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशकों की जाएंगी। डायरेक्टर जनरल PMSA रेयर एडमिरल शहजाद इकबाल कहते हैं समंदर में तेल और ख़तरनाक केमिकल्स इखराज इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। की समुद्री हदूद को महफूज बनाने का अज़्म, PMSA की 13वीं बाराकोडा मशकों का आगाज, समुद्री आलूदगी पर काबू पाने और बहरी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशकें होंगी। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक ने इफ्तिताह किया। PMSA हेडक्वार्टर में शरीक ममालिक के परचम लहराए गए। DG मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रेयर एडमिरल शहजाद इकबाल का इफ्तिताई खिताब। इन्होंने समंदर में तेल और खतरनाक केमिकल्स का इखराज सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। इनका कहना था कि बहरी जहाजों की टक्कर या ग्राउंडिंग से संगीन मेरीन आलूदगी के वाक़यात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के लिए आलमी शराकतदारी के लिए कोशां है। The aim of the exercise is to rehearse and refine marine oil and chemical spill response and search and rescue procedures under the framework of National Marine Disaster Contingency Plan 2019 to enhance interagency coordination and refine our procedures. मैरीन स्पेल रिस्पांस एंड सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज मौजू पर सेमिनार। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती आफात की शिद्दत बढ़ती जा रही है और दौरानिया तवील होता जा रहा है। दरियाई सैलाब, क्लाउड ब्रस्ट और तूफान सब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये खतरा तबाहकुन है। Now, I don't believe that the AI is going to decide whether the next spill takes place or not, but I can assure you with the current technologies, AI can decide, tell you where the spill is going to be and whether you can get there in time to save or not. To safeguard or not. सेमिनार में गैर मुल्की माहिरीन ने अपने मकालात पेश किए। समुद्री आलूदगी को कम करने जैसे मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मारूफ अदाकार यासिर हुसैन एक बार फिर थेटर पर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाने वाला थेटर प्ले मंकी बिजनेस एक बार फिर यासिर हुसैन समेत दीगर अदारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। यासिर हुसैन का सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, जानेंगे राहिल बेग से। जी, जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पर मंकी बिजनेस एक बार फिर आवाम के लिए पेश किया जा रहा है और आज पहला शो पेश किया गया जिसमें आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और इस वक्त अदाकार यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी टीम के साथ थिएटर प्ले पेश करें। यासिर भाई, क्या कहेंगे? पूरे पाकिस्तान भर में ये प्ले पेश किया गया, एक बार फिर कराची में पेश किया जा रहा है, तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोग आए। प्ले आपको पसंद आया? बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, प्ले जो है ये अब तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं इसको 2.0 ही कहता हूँ क्योंकि जो पूरे हमने लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की वो लेके अब दोबारा कराची आए, क्योंकि कराची का एक बहुत ही स्पेशल क्राउड है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और एक तरह से हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं क्योंकि इसके बाद हम इसे इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। कौन से मुल्क में ले जाने का इरादा? अभी वो हमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, जैसी होगी सबसे पहले आपके चैनल से ही करेंगे। और आज की जो शाम थी वो हमारा पहला शो था और अभी ये इंशाल्लाह एक हफ्ता चलेगा यहाँ पे। तो बस मैं चाहूँगा क्या कहेंगे अपने और आर्टिस्टों के हवाले से जो आप पूरा एक टीम वर्क लेकर चल रहे हैं और एक ही कैरेक्टर को किया जाता है बार बार, जैसे अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है डायलॉग्स के हवाले से, सिचुएशन के हिसाब से, तो आप आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पहला शो के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम 4 शहर पहले करके आ चुके हैं, तो उसके बाद ये ज़रा फिंगर टिप्स पे आ गया है सबके प्ले। तो अब हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों का आपने रिस्पांस देखा था वो इतना अच्छा आता है कि हम और अच्छे से करते हैं। बिल्कुल जी, चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने के लिए तमाम फनकार फुल एनर्जी के साथ स्टेज पर उतर रहे हैं, मुख्तलिफ किरदारों में नज़र आ रहे हैं जिसमें यासिर हुसैन है, उमर आलम है और स्टेज के और भी फनकार इसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। जबकि ये थिएटर प्ले अगले 7 दिन तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में पेश किया जाएगा। नेशनल गेम्स 2025 के दिलचस्प मुकाबले, पाकिस्तान आर्मी की 71 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी मजीद मुस्तहकम, वाबदा 27 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद। मोहम्मद हम्माद से मजीद जानेंगे, बताइएगा।
2025 में पाकिस्तान आर्मी जो है वो 71 अगर बात की जाए पाकिस्तान नेवी की, तो पाकिस्तान नेवी 10 गोल्ड 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। और इस तरह पाकिस्तान आर्मी ने 71 गोल्ड के साथ 29 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपनी बर्तरी को रोज अव्वल की तरह बरकरार रखा हुआ है। जबकि वाकबे ने 27 गोल्ड 17 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। बात की जाए HSC की, तो HSC 5 गोल्ड 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5वें नंबर पर है और सिंध 2 गोल्ड 12 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। शहर कायद के मुख्तलिफ वेन्यूज पे जो है वो 32 खेलों के मुकाबले इस वक्त जारी हैं, जिसकी इख्तितामी तकरीब जो है वो 13 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन आने वाले सूबे या डिपार्टमेंट को जनरल ट्रॉफी दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नेशनल गेम्स 2025 के मुकाबले कराची में जोर शोर से जारी। आज NED यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के सिंध यूथ क्लब में जूडो के मुकाबले मुनक्किद हुए। अक्सर शेख की रिपोर्ट। 2025 के रंग कराची में बिखर गए। NED यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के सनसनीखेज मुकाबले, खवातीन और मर्दों की टीमों ने शानदार खेल पेश किया। सिंध यूथ क्लब में जोड़ों के मुकाबले भी हुए। नौजवान एथलीट्स की तकनीक, महारत और रफ्तार शायकीन की तवज्जो का मरकज। बजबिन कहते हैं पूरी कोशिश है कि नेशनल गेम्स में हर खेल का मयार बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक रखा जाए। तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात और मुनसिफाना माहौल फराहम किया जा रहा है ताकि वो अपनी पूरी सलाहियतों के साथ खेल सकें। देखें, बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटीज़ यूथ के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो हमारी विमेंस हैं, यहाँ पर गर्ल्स खेल रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। तो देखें, एक हेल्दी माइंड के लिए आपके हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको पता है, नो डाउट कंपलसरी है। खिलाड़ी कहते हैं नेशनल गेम्स हमारे लिए बड़े मौके फराहम करते हैं। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करके मेडल जीतेंगे। एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा ये कि टीम में ज़्यादा टीम्स नहीं आई। पिछले दफ़ा बहुत ज़्यादा टीम्स थी, इस दफ़ा उस तरह से खेलने का चांस नहीं मिला जैसे पहले मिला था। टोटल 2 मैच खेले अभी तक हमने, और अभी आज हमें बाय मिल गई है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन बस टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी। इस तरह की एक्टिविटीज़ मतलब साल में हमें एक बार ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि लड़कों ज़्यादा वो किया जाता है, प्रमोट किया जाता है लड़कियों की निस्बत। तो लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ जैसे लड़कों को वो प्रमोट लड़कियों को भी किया जाए। मुख्तलिफ मैदानों में जारी ये मुकाबले नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाने और स्पोर्ट्स को फरोग देने का अहम जरिया बन रहे हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, T21।